چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کل صبح سماعت کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کل سپریم کورٹ 1 بجے سماعت کرے گی۔ بادیو نظر میں پی ٹی آئی چیئرمین کے ٹرائل میں غلطیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ملزم کو حق دفاع نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریمانڈ آرڈر کے اگلے ہی دن سزا دے کر ملزم کو جیل بھیج دیا گیا۔ فی الحال ان غلطیوں پر مداخلت نہیں کریں گے۔ تمام نکات ہائی کورٹ میں اٹھائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دائرہ اختیار کا اعتراض اپیل میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا، کیس تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، کیس شکایت کی قانونی حیثیت پر نہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے، قانون کے مطابق مجسٹریٹ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ مقدمہ وہ سن سکتا ہے یا سیشن کورٹ۔ دہشت گردی ختم کریں گے، انتہا پسندی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، گمراہوں کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں خطاب، کہا خود کش حملہ آور جہنم کے کتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم لڑ کر تھک گئے ہیں وہ غلط فہمی کے شکار ہیں، شہداء کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا، پتہ نہیں کراچی کو کس کی نظر کھا گئی، شہر کے مسائل مل کر حل کریں گے۔ بٹگرام چیئر لفٹ ریسکیو کے کامیاب آپریشن پر بے حد خوشی ہوئی، اس کامیابی کا جشن بھی منائیں گے۔ پرامن اقتدار کی منتقلی اولین ترجیح ہے، بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری اور شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں کاروباری شخصیات سے خطاب، کہا ہمارا مینڈیٹ محدود ہے، نئے پارلیمان کے وجود تک ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ بزنس کمیونٹی کو نظر انداز کریں گے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ہم آپ کو سنیں گے اور آپ ریاست کو سنیں۔ معاشی چیلنجز سے نپٹنے میں تاجر برادری کے تعاون کی ضرورت ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے تاجروں کے مسائل حل ہوں۔ یہ سفر ہمیں اور آپ کو مل کر شروع کرنا ہے۔ گرام چیئر لفٹ واقعہ، پولیس نے چیئر لفٹ کے مالک اور آپریٹر کو گرفتار کر لیا، لفٹ کا کنٹرول روم سیل کر دیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، کوتاہی برتنے پر گرفتار کیا گیا۔ پہاڑی علاقے میں اعصاب شکن آپریشن 14 گھنٹے بعد کامیاب ہو گیا، تمام 8 افراد کو باحفاظت نکال لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 600 فٹ بلندی پر چیئر لفٹ میں پھنسے استاد اور 7 طالب علموں کو ریسکیو کیا گیا۔ آرمی چیف کی ہدایت پر آرمی ایویشن اور ایس ایس جی ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ جی او سی نے آپریشن کی قیادت کی، اسپیشل سروسز گروپ کے سلنگ ٹیم کو آرمی ایویشن نے مکمل تکنیکی مدد فراہم کی۔ افواج پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی رہیں اور کھڑی رہیں گی۔ قوم نے پاک فوج کے جوانوں، انتظامیہ اور مقامی افراد کی کوششوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ جولائی میں ہونے والی نیب ترمیم مشکوک ہے، 3 جولائی کو کی گئی نیب ترامیم قانون سے متصادم ہے۔ پوچھ گچھ کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نیب ترمیم کو مشکوک قرار دے دیا۔ سخت ریمارکس یہ کہ نیب قانون 2001 تک ڈریکونین تھا۔ جسٹس عطر من اللہ نے قرار دیا کہ نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناظر میں ہو سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کا حکم 3 جولائی کو ترمیم سے پہلے کا ہے۔ بڑی عدالت نے گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ ریمارکس یہ کہ جاوید لطیف کا مقدمہ انکوائری کی سطح پر تھا، جس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری داخلہ آئی جی سندھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہریوں کو لاپتہ کرنے کے مقدمات کی سماعت کے دوران اہل خانہ کی دہائیاں، عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی، سرکاری وکیل قابل ذکر وضاحت نہ کر سکے۔ جج آئین و قانون کے دائرے میں کام کرتا ہے، رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سچ سے نہیں۔ آزادی اظہار رائے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب، کہا صحافی اور جج ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ملک میں ذمہ دارانہ صحافت وقت کی ضرورت ہے، خبر اور رائے میں فرق ہوتا ہے۔ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بنتے مونس الہی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ پرویز الہی اور مونس الہی کی نیب انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مونس الہی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے۔ والد کے عہدے کے ناجائز استعمال کا الزام، مونس الہی نے عظمت حیات اور سہیل اصغر کے ذریعے ٹھیکوں کی مد میں کک بیکس لیے۔ جولائی 2022 میں اپنے اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی بھاری رقم جمع کرائی۔ سرکاری ٹھیکوں میں کک بیکس کے کیس میں پرویز الہی پہلے ہی نیب تحویل میں ہیں۔
निगरान वज़ीर आज़म ने MQM वफ्द से मुलाकात की। सुनने का अमल शुरू हो चुका, अब अमल भी होगा। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ताजिर बरादरी के मसाइल सुने कि इलेक्ट्रिक ने किबला दुरुस्त ना किया तो निगरान वज़ीर आज़म नोटिस देंगे। माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जल्द एक्शन होता नजर आएगा। आइंदा चंद रोज़ में गिरफ्तारियाँ क्रैकडाउन नजर आएगा। वज़ीर आज़म ने स्ट्रीट क्राइम का सख्त नोटिस लिया है। हसास इदारे और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय जासूस और पाकिस्तानी सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्तौल, ईरानी करेंसी और दीगर दस्तावेज बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त अक्खल और जहूर अहमद के नाम से हुई। मुल्जिमान को कलाकोट की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। सानिहा जड़ावाला जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने के वाक़यात। 5 मजीद मुकदमात दर्ज। मुकदमात 750 से ज़ायद नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मरकजी मुल्जिम यासीन समेत 170 से ज़ायद मुल्जिमान पुलिस के हिरासत में हैं। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद जड़ावाला पहुँच गए। मसीहों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा, ये कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। जड़ावाला वाक़े में मजीद FIR दर्ज की गई। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर किया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 190 अफराद को जड़ावाला वाक़े में गिरफ्तार किया। मजीद बोले, फेस ट्रेस एक एप्लीकेशन है। फेस ट्रेस को सेफ सिटी के कैमरों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। मुल्जिमों के डाटा को नादरा के पास भेजने से पहले मैच करवाया जाता है। तस्वीरों की क्वालिटी बेहतर हो तो मुल्जिमान को ट्रेस कर लेते हैं। तुर्बत के इलाके मलाचात में 3 लाशें बरामद। लेवी ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मक़तूलीन की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। कमसन बच्ची रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज को नौकरी से बर्खास्त की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी, मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, ये मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर है लेकिन हम जुडिशल साइड पर भी देखेंगे। इस हवाले से तफसीली दरख्वास्त आई है। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतालिक फेडरेशन को देखना चाहिए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बरतानिया में 10 साला बच्ची का कत्ल। जेहलम पुलिस ने सारा के 2 चचाओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में मौजूद मलिक इमरान और ज़रीफ के लवाहिकीन ने हाई कोर्ट में गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रिट दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हिरासत में लिए गए अफराद की बाजियाबी के लिए बेलफ का छापा। लवाहिकीन की गारंटी पर मलिक इमरान के दोनों भाइयों को रिहा कर दिया जाएगा। मकतूला का वालिद मलिक इरफान ताहाल रूपोश है। सालाना बुनियादों में पाकिस्तान की बरामदात में $2.3 अरब का इजाफा। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती हजम 14.2 और अमरीका के साथ 6 अरब $0.4 की बरामदात रहीं। बोल न्यूज़ ने बरामदी तिजारत से मुतालिक दस्तावेज हासिल कर लीं। अफ्रीकी ममालिक के साथ $4.44 अरब की तिजारत हुई। दस्तावेज के मुताबिक मशरक़ वस्ता से दरामदात में 24% की कमी हुई। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ $18 करोड़ 64 लाख की तिजारत रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जारी। बहावल नगर में 35 साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। 7000 अफराद बेघर। पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर और आरिफवाला में भी हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी को सैलाब बहा ले गया। दरियाए सिंध में तोगयानी से कानपुर की कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शिकारपुर के थर केनाल में भी शगाफ पड़ गया। मुतादिद गाँव डूब गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। दरियाओं में तोगयानी मजीद बढ़ने का खदशा है। सिंध डेंगू वबा में पंजाब से आगे निकल गया। रवां साल 854 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची सर फहरिस्त ज़िला शर्की सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। महकमा सिंध के मुताबिक सिंध भर में डेंगू मच्छर से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब भर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 743 हो गई। लाहौर में मुतासर मरीजों की तादाद 239। सूबे भर के अस्पतालों में 93 मरीज ज़ेर इलाज। सूबाई महकमा सेहत ने फ्री हेल्प 1033 फाल कर दी। बलूचिस्तान में पाक आर्मी की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप। मरीजों को इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात और राशन भी तकसीम की।
पाक फौज के डॉक्टर्स ने 1000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया। अवाम ने पाक फौज के इक़दाम को सराहा। पाक आर्मी की जानिब से SOS स्कूल कायम। FC बलोचिस्तान ने राशन, तज़ीनो आराइश और दीगर फलाही कामों में मदद की। लकी मरबत में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। फायरिंग का सिलसिला जारी, मजीद हलाकतों का खदशा है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 784वें सालाना उर्स का आगाज़। मज़ार को गुस्ल दे दिया गया। मखतूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। गुस्ल की तकरीब में मुरीद हुसैन कुरैशी की मुदाखलत ज़ैन हुसैन कुरैशी पर बरस पड़े। गुस्ल की तकरीब रोक दी। कहा, यहाँ से निकल जाओ, ये मेरे दादा की कब्र है। मेरे बगैर गुस्ल की तकरीब कैसे शुरू की? मोदी सरकार बरे सगीर की मुस्लिम तारीख को मस्क करने पर तुल गई। हिंदुत्व के पैरोकारों ने इंतहा पसंदी की आग में शहरों को भी न छोड़ा। 2014 से इक़्तिदार ने 600 से ज़ायद शहरों, तारीखी मकामात और जगहों के नाम हिंदू तर्ज पर तब्दील कर दिए। इंतहा पसंद हिंदुओं का आगरा का नाम अगरवान, लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर और मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर रखने का भी मुतालिबा। उत्तर प्रदेश हुकूमत का अलीगढ़, फिरोजाबाद और शाहजहानपुर का नाम भी हिंदू तर्ज पर तब्दील करने पर गौर। यूनान के जंगलात में लगी आग काबू न हो सकी। हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। कई मकानात और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। पुलिस ने 25 मुहाजिरीन को ले जाने वाली अल्बानवी शहरी को पकड़ लिया। 13 पाकिस्तानियों को छुड़ा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। 250 से ज़्यादा तारकीन वतन फंसे हुए हैं। पाक अफगान पहला वनडे शाहीनों के नाम रहा। अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त। 202 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 20वें ओवर में 59 रन पर आउट हो गई। कोई अफगान खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। 9 बल्लेबाज डबल फिगर भी नहीं बना सके। स्पीड मर्चेंट हारिस रऊफ ने 18 दीगर पान शिकार करके ग्रीन शर्ट्स की फतह में अहम किरदार अदा किया। मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फतुहात का सिलसिला जारी। बांग्लादेश को भी हरा दिया। 7 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए मालिक ने जान की बाजी लगा दी। आग के शोलों को खातिर में न लाते हुए जलते मकान में घुस गया। कुछ ही लम्हों बाद कुत्ते को साथ लाने में कामयाब हो गया। और पेंसिल की लीड से दिलफरेब डिज़ाइन, तख्लीककार ने पेंसिल को ही शाहकार बना दिया। तराश खराश करके कभी जंजीर बना दी तो कभी दिल बना डाला। देखने वाले देखते ही रह गए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।